یہ آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ شیخ یاسین سے خبریں سنیے۔ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی برادری کو کرنی ہوں گی مشترکہ کوششیں، وزیر اعظم۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں اسکوسٹ کشمیر کی 35ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ، مجموعی ترقی اور انتظامی کام کاج کے مختلف نکات کو دی منظوری۔ ملک کے مختلف حصوں میں درگا پوجا تقریبات کا سلسلہ جاری، ماتا ویشنو دیوی استاپن پر ہزاروں شردھالوؤں کی حاضری اور بچیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے ملک بھر میں متعدد تقریبات کا انعقاد۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ آزاد، کھلا، سب کی شمولیت والا، خوشحال اور ضابطوں پر مبنی بھارت بحر الکاہل خطہ پورے علاقے کے امن اور پیش رفت کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جنوبی بحیرہ چین کے خطے میں امن و سلامتی اور استحکام پورے بھارت بحر الکاہل خطے کے مفاد میں ہے۔ وہ آج عوامی جمہوریہ لاؤ کے شہر وینٹین میں 19ویں مشرقی ایشیا سربراہ کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں جاری محاذ آرائی اور لڑائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ توسیع پسندی کے بجائے ترقی حکمت عملی کا حصہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ یہ دور جنگ کا نہیں ہے اور مسائل کے حل میدان جنگ سے نہیں نکالے جا سکتے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اقتدار اعلیٰ، علاقائی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کا احترام ضروری ہے۔ انہوں نے انسانی ہمدردی کے رویے، مذاکرات اور ڈپلومیسی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اس سمت میں ہر ممکن قدم اٹھاتا رہے گا۔ دہشت گردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سنگین چیلنج قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا کے ملکوں کو دہشت گردی سے لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اور ساتھ سائبر، بحری اور خلا کے شعبوں میں بھی اشتراک کو مستحکم کرنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون سری نگر میں اسکوسٹ کشمیر کی 35ویں یونیورسٹی کونسل میٹنگ کی صدارت کی۔ کونسل نے اہم پالیسی امور پر تبادلہ خیال کیا اور یونیورسٹی کی مجموعی ترقی اور انتظامی کام کاج کے لیے ایجنڈا کے مختلف نکات کی منظوری دی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کسانوں کو معیاری بیج کی تقسیم کے لیے یونیورسٹی کا اپنا سیڈ سینٹر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یونیورسٹی کو مشورہ دیا کہ وہ رسائی پروگراموں کو مضبوط بنائے تاکہ نئی ٹیکنالوجی کسانوں تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نئی دلی میں کل پی ایم گتی شکتی پہل کے تحت نیٹ ورک پلاننگ گروپ کی 81ویں میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کی صدارت صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کے محکمے کے ایڈیشنل سیکرٹری راجیو سنگھ ٹھاکر نے کی۔ میٹنگ میں سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت اور شہری ہوابازی کی وزارت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا گیا۔ ان پروجیکٹوں میں جموں کشمیر کے سری نگر ہوائی اڈے پر ایک نئی مربوط ٹرمینل عمارت اور اس سے منسلک بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی شامل ہے۔ پروجیکٹ میں 71,500 مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی ایک نئی ٹرمینل عمارت کی تعمیر شامل ہے، جس میں 2,900 مسافروں کی آمد و رفت اور 10 ملین مسافروں کی سالانہ گنجائش ہوگی۔ زراعت کے پرنسپل سیکرٹری شلیندر کمار نے آج جموں میں ایک جائزہ میٹنگ کے دوران مرکزی معاونت والی اسکیموں، کیپیکس بجٹ، نبارڈ اور ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ میٹنگ کے دوران افسران نے ان اسکیموں کی عمل آوری، درپیش چیلنجوں اور حکمت عملیوں کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی۔ اس موقع پر سیکرٹری موصوف نے تمام اسکیموں کے تحت بروقت عمل آوری اور رقومات کے استعمال کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے تمام محکموں کو ہدایت دی کہ وہ مالی سال کے مقررہ اہداف کو پورا کرنے کے لیے قریبی تال میل سے کام کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کے فوائد بنیادی سطح تک پہنچ پائیں۔
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करवाने और अवाम को हर सतह पर राहत पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। श्रीनगर में आज अपनी रिहाइश गाह पर पार्टी कारकुनों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस मोड़ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल की चाराजोई के लिए अपने तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। दरियास्ता पार्टी के एक प्रेस बयान में कहा गया है कि राजौरी के थन्ना मंडी हलके से मुंतखब हुए आज़ाद उम्मीदवार मुजफ्फर अहमद खान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है और इस ज़मन में उन्होंने पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला को बाज़ाब्ता तौर पर हिमायती खत भी पेश किया है। पार्टी की कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए आए दीगर कारकुनों ने उमर अब्दुल्ला के साथ भी मुलाकात की। भारतीय फजाई फोर्स उत्तराखंड वार मेमोरियल की तारीखी कार रैली आज श्रीनगर पहुंच गई। श्रीनगर पहुंचने पर उत्तराखंड वार मेमोरियल के चेयरमैन तरुण विजय ने श्रीनगर के एयरबेस कमांडर एयर कोमोडोर प्रभात मलिक के हमरा कार रैली में शामिल शुरका का इस्तकबाल किया। रैली की क़यादत विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट कर रहे हैं। इस मौके पर उत्तराखंड वार मेमोरियल के चेयरमैन तरुण विजय ने रैली के बारे में बताया। यह रैली सियाचिन के एयरबेस थॉयस से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक जाएगी और वापस दिल्ली नवंबर के मिड में आएगी। तो लगभग 7000 किलोमीटर की ये रैली है जो इंडियन एयरफोर्स के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पहली किस्म की रैली है। इसका उद्देश्य है कि नौजवानों में इंडियन एयरफोर्स का एयर वॉरियर बनने का एक जज्बा पैदा करना, उत्साह पैदा करना। हम भी मातृभूमि भारत माता की सेवा के लिए वायु वीर बनेंगे, एयर वॉरियर बनेंगे और सामान्यतः जितनी भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, चाहे वह आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसके लिए एक सम्मान, एक प्रेम और एक भक्ति का भाव पैदा करना। तो भारत सरकार के जो माननीय मंत्री हैं जैसे गडकरी जी हैं और अन्य मंत्री, सब ने इसको सहयोग दिया है। यह मोदी जी की मातृभूमि सुरक्षा की जो विजन है उसको साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। श्रीनगर में 20 अक्टूबर को महकमा सियाहत के एहतमाम से बैनुल अक़वामी नौइयत का कश्मीर मैराथन मुनक़्क़िद हो रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा ऐसे मैराथन का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें कसीर तादाद में बैनुल अक़वामी, कौमी और मकामी रनर हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन को कामयाब बनाने के लिए हर तरह के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट के साथ हमारे नुमाइंदे। जम्मू कश्मीर में कौमी व बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों के इनेकाद का सिलसिला अब चल पड़ा है। इन दिनों श्रीनगर में लीजेंड्स लीग क्रिकेट जारी है और चंद दिनों के बाद यानी 20 अक्टूबर को श्रीनगर में कश्मीर मैराथन नाम का एक और बैनुल-अक़वामी मुकाबला होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पहली मरतबा मुनक़्क़िद होने वाले इस मुनफरिद मैराथन में दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाले 2000 से जायद एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता रनर्स के साथ साथ काफी तादाद में मुल्की और मकामी रनर्स भी शामिल हैं। इस मैराथन के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है और ये 2 जुमरू यानी फुल मैराथन और हाफ मैराथन के तहत मुनक़्क़िद हो रहा है। फुल मैराथन के तहत 42 किलोमीटर जबकि हाफ मैराथन के तहत 21 किलोमीटर दौड़ना होगी। उम्र और जिन्स के एतबार से भी दौड़ को मुख्तलिफ जुमरों में तकसीम किया गया है। ये मैराथन पोलो व्यू से शुरू होकर जीली डल के किनारे किनारे फोरशोर रोड से होते हुए पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएगी और वापसी पर पोलो व्यू में ही इख्तिताम पजीर होगी। मैराथन जीतने वालों को कुल 2 करोड़ 80 लाख रुपए के इनामात दिए जाएंगे। फुल मैराथन के लिए 7 घंटों का क्वालिफाइंग वक्त मुकर्रर किया गया है जबकि हाफ मैराथन के लिए 3 घंटे मुकर्रर किए गए हैं। महकमा सियाहत में डिप्टी डायरेक्टर मलिक वसीम ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा कि मैराथन को कामयाब बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मैराथन के रास्ते हर 2.5 किलोमीटर के बाद एड स्टेशन कायम किए जाएंगे जिनमें रनर्स के लिए हर तरह की सहूलियात दस्तयाब होंगी। बावर किया जा रहा है कि श्रीनगर में कौमी और बैनुल-अक़वामी रनर्स की आमद और मैराथन के इनेकाद से यहाँ के सियाहती और इक़्तिसादी मंजरनामे को मयार की बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। नीज इस पहल से बैनुल-अक़वामी सतह पर जम्मू कश्मीर की साख भी दुबाला हो जाएगी। शोबे खबर आकाशवाणी श्रीनगर के लिए मैं सुहेल भट्ट।
खबरों का ये बुलेटिन आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से नशर किया जा रहा है। मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में दुर्गा पूजा की तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज दुर्गा अष्टमी है, जो नवरात्रि का 8वां दिन होता है और इस दिन माँ दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी के मौके पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन को नवरात्रि के सबसे पवित्र दिन के तौर पर माना जाता है। बिहार में भी दुर्गा पूजा मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। मुख्तलिफ पूजा कमेटियों की जानिब से खूबसूरत पंडाल लगाए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया और दीगर शहरों में बड़ी तादाद में अकीदतमंद देवी दुर्गा की पूजा और दर्शन के लिए पूजा पंडालों में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी दुर्गा अष्टमी का त्योहार मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कटरा में वाक़ा माता वैष्णो देवी के अस्थापन में सबसे बड़ी तकरीब मनाई जा रही है, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु हाजिरी दे रहे हैं। कश्मीर वादी में भी ये दिन मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मंदिरों को खूबसूरती के साथ सजाया गया है। पंडित बरादरी से वाबस्ता अफराद और अकीदतमंद खीर भवानी मंदिर तुलमुला और टिक्कर कफाड़ा में आज सुबह से ही हाजिरी दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दुर्गा पूजा के मौके पर अवाम के तय नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने दुआ की है कि ये दिन सब के लिए सेहत, खुशी और खुशहाली की एक नवीद लेकर आए। आज बच्चियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन जिनसी मसावात और तालीम की अहमियत को उजागर करने के साथ साथ बच्चियों के मौके फराहम करने के लिए हर साल मनाया जाता है। इस साल का मौजू है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। 2011 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने 11 अक्टूबर को बच्चियों के आलमी दिन के तौर पर मनाए जाने की तौसीक की थी। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में मुतअद्दिद तकरीबात का इनेकाद हुआ है। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से जम्मू कश्मीर में भी कई तकरीबात मुनक्कद हुईं, जिस दौरान लड़कियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ देने और उन्हें समाज में यकसा मौक़े फराहम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एहतमाम से पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक्कदा एक तकरीब से तकरीर करते हुए पार्टी की ख़वातीन विंग की सदर शमीम फिरदौस ने कहा कि जम्मू कश्मीर को तरक्की की राह पर लाने के लिए लड़कियों को जदीद उलूम से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। बीजेपी ने आज कांग्रेस के उस बयान की नुक्ताचीनी की है जिसमें उसने कहा है कि पार्टी हरियाणा असेंबली इंतखाबात में हार की वजूहात का पता लगाने के लिए एक कमेटी तश्कील देगी। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने इल्जाम लगाया कि यह हरियाणा में हार के लिए सीनियर कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी को बचाने और दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराने की कोशिश है। मौसमियात महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।